गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening, pirates. कितना पंप एंड डंप करवा रहे हैं सर। वो अपने हाथ में कुछ नहीं है। वेस्ट राम बाबा करवा रहे, उनका सब सच। करा जा रहा है। मंडे तो और अच्छा हो, फ्राइडे को इतना अच्छा किया तो मंडे तो क्लियर डाउन साइड लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या होता है। देखो देखो कहाँ पर खोलते हैं। ठीक है, we are waiting for 2 more minutes and then we will start. Let me share my screen. सर गोल्ड का देखा था वैसे। नहीं देखा मैंने एक्चुअली। गोल्ड का ना वैसे ना उसने वीक पे भी 860 पॉइंट ना बॉडी टू बॉडी क्लोज किया है। एक्चुअली मुझे इंडिया का इंडेक्स नहीं समझ में आता गोल्ड का कौन सा है वैलिड। हम्म, देखते हैं हम लोग ये बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो जाने के बाद एंड में जाते हैं गोल्ड हम्म, की तरफ। हम्म। नहीं ये अगर 2 मिनट आप वेट कर रहे हैं तो उसमें देख सकते हैं हम। 2 ही मिनट का काम है उसका तो। नहीं ना, लेकिन मैं चला जाऊंगा फिर उसके अंदर फिर। कोई नहीं कोई नहीं। ओके, more 30 seconds. Right. चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी। So we'll start with Nifty first. Currently, what has happened and why it has happened, I'm not sure what is the news, why chart is behaving like this, but uh, but the chart is saying some story, and let us try to understand what is that story. So from the recent top, price declined below certain range, and for us, uh, in Nifty, the important range was 2400, which is this 2406. So when the price closed below this, we thought, or we know the price must have the scope up to this point, right? So that means around 19,000. And maybe this time it can go below, more below than this level as well. But we will still think for 21,500 and 19,000. In this, when the price will be falling down, it will not fall in straight line. So after every primary move, there is secondary move. So if you can think about the range, primary range, currently price has extended beyond 2400, right? That means primary is 7,200. So the primary length
opened after closing is 7,200 downside. And what could be the pullback? Maximum limit of pullback is 2,400, right? So this pullback can be of the size 2,400. And if still price reaches to 2,400, it will still continue falling down like this. Is this point clear? सर एक बार रिपीट कीजिए. So, so primary uptrend is defined in this manner. Primary ओके. downtrend is defined in this manner. Okay, what is primary range? So if we are talking about weekly, so we had our ranges for 1 hour. If we are thinking in Nifty, we have 802, 4. हाँ. ओके. right? For 1 hour. So if I'm talking about one day, it is 2,400, right? 3 times of यस. 802. And if I want to understand whether price has closed, so if we want to measure 2,400 week to week, one day is enough. But if price is beyond 2,400, then that means we should measure everything in terms of weekly time frame now, right? So that means यस. whenever we are switching to weekly time frame, it we need to multiply this number 3 times and it could be 7,200. Fine. So price is beyond 2,400 or below 2,406, 2,406. That means when price closed below 2,406, it will have a capacity to fall to 7,200. But in this fall, if price wants to continue the fall, it can come back or it can take a pullback of the size this, right? So for the journey of 7,200, pullback of 2,400s are normal. So price can come back, then again go down, come back, and likewise it is going to cover 7,200. Why 7,200 downside? Because 2,400 broken downside. So that means now the price will have capacity to fall to 7,200 and still it can go up beyond 3 times of 7,200. But price can have capacity to fall to 7,200 and price can also have capacity to take a reversal up to 2,400. Fine. Now this point is clear. तो सर हर 2400 पे 2400 का रिवर्सल थोड़ी ना आएगा. हर 2,400 पे नहीं आएगा. तो रिवर्सल जो ओके. होगा दैट रिवर्सल शुड बी okay. The question which is raised by Kitu ji is very valid. Try to understand this. If price is touching to 2,400 and 2,400 का reversal है, that means we have reached to the point जहां से हमने शुरुआत की थी from the starting point, right? If यस. if we are starting from some point and this is suppose 2,400 and at 2,400 if we are reaching again or the pullback is of size 2,400 then we are meeting at the same point. But when we say we are in uptrend or downtrend, so whichever डाउन side the ट्रेंड. trend is, price is extending the move in that direction. So can you also see the move is extended in the downside यस. direction? So that means यस. if now still price comes back by 2,400, it is not going to come back to same point. Got it? यस. गॉट इट. Okay. So that means from this point, if we are सर talking एक बार about रिपीट week, yes, सर एक बार रिपीट करेंगे लास्ट पर. कर देता हूँ. Okay. So see, ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड इज आई एम गोइंग टू ऐड, सो नाउ आई एम रिपीटिंग फॉर द थर्ड टाइम, सो आई एम गोइंग टू ऐड सम एडिशनल बैकग्राउंड बिकॉज मे बी फर्स्ट टू explanations were not so clear. So imagine I'm calling this as an uptrend.
or calling this as an downtrend. The uptrend is the combination of primary and the secondary moves. Primary and the secondary. Primary and the secondary moves. Downtrend is a combination of primary, secondary. Primary, secondary. The size of primary move, because of the nature or because it says it is primarily it wants to go up. So that means it wants to travel much. And secondary means it has to take a pause. But again, when it is starting, it is not going to start from the point where it has started before. So that means the length of the secondary should be smaller than the primary. And then again from this point it will start until the primary target is not achieved. Price is going to behave like this. Similarly, on downside, if primary length like the for us 2400 was our range, but price extended beyond 2400, that is very first sign that we are in downtrend. But how long price will stay in that downtrend? For us, for two line theory, we have clear calculation. If it has closed below 2400, it can stay in downtrend for 3 times of that range. So 2400, then another 24, and then another 24. But is it going to fall straight? No. What is going to happen? It will first confirm it is downtrend. So by extending below 2400, then it is going to take a pullback, which should be within 2400. Within 2400, everything is okay. And then price will again try to continue. If price has declined from this point, and if it is closes below 800 points, suppose price started going up, and from any point, if it does not go beyond 2400 and started falling down again, and if it is closing below 800, then it is going to continue towards 7200 from this point, towards 7200 total points. But again, from this point to the towards journey, whenever it is extending beyond 2400, it can again give a pullback, and that pullback may have power of getting up or getting upside or running up till 2400. And it does not make it compulsory that it should reach to 2400. The length of the pullback would be within 2400, and until and unless whether if it is touching to 7200, only after that it will gain a capacity to close about 2400. If within this journey, if it is closes about 2400, can that be possible? Yes, that is also possible. But if that happens, that means we need some additional manipulation in the price, and that manipulation can bring price a halt, intermediate halt, and then price is reaching or price is closing above 2400, and then trend will be broken. So after this point, when the price crosses from any low, if price closes above 2400, then the downside will not continue. Then we will start thinking about upside. Why? Because price closed beyond 2400 upside. That means now price will go up and will have a limited 2400 move. Again go up, limited 24, and likewise it will run for another 7200 points. Theoretically, is it clear? Is this explanation clear? Yes, sir. Yes, sir. तो सर Okay. 2400 तो हम वीक टू वीक डे पर देखेंगे ना? वीक टू वीक डे पर देखेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट क्लोजिंग के लिए बॉडी टू बॉडी जाना पड़ेगा. देन वी विल गो फॉर वीकली. Weekly. Right. Okay. So what weekly is showing now? So just repeat that last what you said. 24 week to week See. to week will. See, we need to understand every time frame has its dedicated length, right? Yes. For 1 hour. 1 hour we have a dedicated length of 802, right? For Nifty. If you go for 1 day, the dedicated length is 3 times of 804, that is 2400, right? So 2400 belongs to 1 day.
And if we want to understand, suppose there are weeks like price started from this low and some week is built and then it has reached to 2400 and we are confused whether it is trend has changed or not. And suppose next candle the week just crossed this. Week is the body and a week I am talking about. So if that weeks is crossing this, we are now confused whether price has actually closed beyond 2400 or not. So for that we will go and ask higher time frame. So for daily, higher time frame is weekly. So weekly closing of body to body 2400 is going to confirm the trend. And that is what has happened in this. This was weekly chart and price closed below 2400. And that is giving us a sign that price can have a pullback, but 7,200. So you may also get this question: why the same scenario did not happen in the previous price movement, right? सर सपोज दैट सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, सपोज दैट कल मार्केट ओपन होता है ना, और वीक टू वीक इसने 2400 कंप्लीट कर दिया डे पर, क्लोजिंग दे दी अपसाइड फॉर एग्जांपल, तो अभी उसका कंफर्मेशन मुझे बी टू बी के लिए पूरा वीक वेट करना पड़ेगा, राइट? यस यस, पूरा वीक वेट इन दिस सिनेरियो मुझे वीक का वेट ही करना होगा, या फिर मैं इस सिनेरियो के साथ आगे कैसे बढ़ूं ट्यूसडे में? नहीं बढ़ सकते, वे वीकली पोजीशन है ना, वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली अगर वीकली रेंज पे हमने कुछ पोजीशन बनाई है, इफ वी आर प्लेसिंग और इफ यू आर बिल्डिंग एनी पोजीशन बेस्ड ऑन वीकली क्लोजिंग, यू शुड हैव दैट थिंग इन माइंड दैट एक वीक की रेंज कितनी होती है. सपोज 2400 इज द रेंज, राइट? करेक्ट. Suppose now imagine a situation, you are building put position and at this point if you build that position and market is started taking reversal, okay, imagine. So from this point till this point, suppose this is 2400, but you build your position at 800 point, correct, right? And yes, we are waiting that price will fall. Price suddenly taken and reversal. You should know, or we should know, this reversal capacity is 2400 itself. It can go against you by 2400. That means we cannot build the position at this point. We need to wait for the reversal, maybe at this point, at this point, at this point. Or is it sure with market that it is going to give us reversal at 2400? Answer is no. It can take any time. It can take a dent anytime. Just a moment. Okay. So I'm saying if we know the length of the pullback, we should know where to enter. So in this case, suppose if we consider this as an base, I want to enter for short.
then from this point, if it has already taken reversal of 800 point, if we know we can enter at this point, still there is a scope of reversal of 1600 more points, right? So that means on spot, if it is 1600, at ATM position, it will be 800 points reversal can happen. So suppose you have taken a premium of 1400 rupees. Imagine at ATM you are getting a premium of 1400 rupees and price is going to reverse by 1600. So that means you may get a reduction of 800 points and your position can come down to 700 as an option premium. कितने लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बोल दो नहीं आया. Repeat कीजिए ना please. See, I want price to fall. For that, I am building a position. But when I started building a position, I should know how much reversal can happen and where I should exit. So I should handle from this point to this point. Any moment it can continue. It is not sure that it is going to continue by touching 2400. If while taking pullback, it can take a reversal from here, from here, from here, and after that pullback, with this sudden reversal, it can start falling down again. So that means if we are opening position, suppose at 800 points or 1600, these are important control points, or at 2400. If we get this chance, then it is a best chance. If you are not getting this chance, then at least at this point, we should build our position, start building our position. Suppose we started our position at this point, 1400, when the price was at 1400. And imagine there is another 800 points move is price can go against your move. So imagine the price can take a reversal of 800 points on spot. That means 400 points will be reduced from your ATM option premium, because normally ATM option premium has capacity of 50% of the move. So that means 800. Yes, 0.5%. So 400. So that means 1400. If you remove 400, your position can become 1000. And suppose at this point, the price has given weekly closing above 2400. Then if this premium is 1000, 700, 800, wherever it reaches, we just need to close the position. That means out of 1400, you might have lost 700 rupees as an premium. And we should be ready for this. So 700 rupees into 6. So imagine it is 42,000 rupees 42. in Nifty. Why 6? 65. It is 65, right? Okay. So for Nifty, it is a risk of 42,000 rupees. We have built our position in Bank Nifty. I am also going to explain the challenges and what could be the maximum reversal, and after that what to do with that position. Fine? Okay. So this also, if you measure this closely, after pushing so much money in the market, it is still not able to close beyond 1600 points. Right? How this can happen? So price has taken reversal and weekly closing is not able to happen beyond 1600 points. Why? When it was an uptrend, it could go. So what is the significance of 1600? You can go and check any day the closing did not happen below 1600. 1602. This is 1600. This was just a challenge for a certain time because suddenly trend has started, and the length of the trend, because of the length of the trend, instead of one auctions of 1600, there were two auctions of 1600 happen. And if we go into the daily chart, we can see that.
Where is that? But otherwise, so these I can consider two occurrence of 1600 points. So price even did not covered entire 1600 that time. But from this point till this point, if you just try to map this, everything is within first 1600 points and this ये शायद this सर यूक्रेन वॉर था ना, आई थिंक ये नहीं, ये वाला यूक्रेन पीछे है। ये वाला इधर है यूक्रेन, ये यूक्रेन है ये। बट ये यूक्रेन वॉर के बाद वाला, व्हेन द प्राइस ब्रोकन 2400 का रेंज। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड इन द प्राइस। ये बड़े पोजीशन में थोड़ा दिल इधर उधर हो जाएगा, दुख जाएगा, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स, तो कुछ टेंशन नहीं आएगा। सो सिंस कोविड, दिस वाज कोविड, ये कोविड है। व्हेन द प्राइस क्रॉस्ड अबाउट 2400 here, from this point the bull run actually started, and then price lost a capacity to fall by 2400, और तब तक ये बुल रन चलता रहेगा until and unless price is not closing below 2400. So we are coming to the point where price has tried closing below 2400, ये वाला पॉइंट था वो। एंड दिस वाज यूक्रेन यूटर्न, ये है ना, ये यहाँ पे यूक्रेन वॉर हुआ है। दिस फेज इज यूक्रेन वॉर, because of which price was not about to close below 2400, but suddenly someone created a temporary lower high for some reason, so that it should look like it is closing below 2400. And if you know, we were in the market and this was happened suddenly, and then we started mapping, okay, Ukraine war is happening, but we have posted our view at this point, price is not going to fall from here, it is going to take reversal. Why from here? Because this temporarily manipulated lower high can give a probability to price to fall up to 2400. So this is 2400, and then it was shifted 2400. From this point till this point, it was shifted 2400. Again, there was one more shift, but not the closure, and then price has taken another 2400. And you can see there is some challenge. So when there is a impulsive move, like imagine, okay, currently we are watching in day, so that's the reason it is showing us some error. But if you are watching in weekly, because 2400 belongs to week, it will be crystal clear that price will not close, or price has not closed from the manipulated high. It has not closed below 2400. From the manipulated high, it has not closed below 2400. And then from that point, when price closed above 2400, the up move again continued. Now price again lost the power that it will go below 2400. It cannot close below 2400. So even this move was valid. So how long this uptrend was valid? Until and unless it is not closing below 2400. And this was the point where in 2024, we first thought about that price is now going to fall by 7,200 points, right? इधर तक प्राइस जा सकता था, but then they added additional manipulation, the scenario which we have discussed. So after closing below this, price gains and capacity that it can fall to 7,200. But they had some other plan, and because of that some other plan, suddenly, so even this reversal was 1600, and then again price started falling down, right? But suddenly someone took price and closed above, someone took a control on price and closed above. From the low, it has closed above 2400. So I'll consider this as a low, and from this point it has closed above 2400. But then additional manipulations and everything was done, and if you can closely see, this is nothing but looks like 1x of 2400. And the moment price closes below this,
It has a capacity to go down till 2 times, but we are just considering about 1900. And when the price will again start from for the downfall, we needed a closure below 2400, and whatever have not happened in this move is going to happen in this move, and this additional manipulation can cause price to move more down. So this is current expectation in price. So that means if we are mapping this, we should not get scared, because on top of this, with this manipulation, there was additional manipulation happening, that price was carrying 1600 points move. So this was a very first or second instance. This was first instance where it could not close below 1600. Here it could not close below 1600. Even on this 4th June election day, it could not close below 1600. And if you watch this in daily form, you will see the price has arrived to this point, and from that point it has taken reversal. And this was very first time when it is closed below 1600. So if you remember my 21st October post on Twitter, from this point onwards, all the investors are going to face lot of challenges in their portfolio, and it is not good for investor. This closing was not good for investor. That is what we have discussed. So right now this pullback is okay, but still see, on weekly basis, even after pulling this much amount of money in the market, or pushing this much amount of money in the market, we are not able to come above 51. So that is not a good sign for upside, and the market is still favoring downside. So ये pullback होना, ये अभी इसके पीछे का logic, just try to understand why the pullback has happened only on Friday, and why everything was falling. Why pullback happened at this point and not any other point? Why the closing has happened below 2400? Why this pullback did not happen before 2400? There are a lot of clues in the price. First thing, price when closed below 2400, it has given very first clue that downtrend has started, or which was left behind in this move. Now it has started again. After that, every retailer wants to invest and might be waiting for price to take a halt near this point or this point, somewhere closer to this point. Okay, as per support and resistances logic. And if you go back in the history, lot of supports and resistances taken, everything, and then they are looking for some pullback so that they can enter in this pullback. And then they are allowed. Imagine a scenario, smart money is showing you the bottom. Smart money is showing retailer, see, this is the bottom, please invest. ऐसा होगा क्या? वो स्मार्ट मनी हो, इतने गधे नहीं है कि हमें बोलेंगे इतना ओपनली वी आर शोइंग यू दिस बॉटम एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. वो अपने लिए नहीं वो बॉटम बना रहे, या अपने लिए दे आर नॉट पुशिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट. they have their safe positions built. They can now bring price anywhere in between this, but because of the limitations of their algo, they can only bring price in the range of 2400. इसमें ही वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने वो किया. They did it, but the sign says it has. इतना पैसा डालने के बाद क्या ये 1600 के थोड़ा सा ऊपर तोड़ना उनको was it not possible for them? It should be possible, right? कितना इजी है 27,000 के ऊपर 500 पॉइंट लेके जाना. नेक्स्ट वीक लेके जा सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों को भी लगेगा. मंडे को लेके जा सकते हैं, but then their sustainability will be reduced, because imagine 2400 is this. So they can go till 25,000, but still up to 25,000 it is downtrend. It is not yet uptrend.
And because of this nature, this from the point where price has started, where they have manipulated, how they have broken, I don't feel the price will have more power to sustain in this area. I'm not talking about Monday gap down or price cannot go up. We should not think about it. We just, if we have our live position, when we built our position from that point until 2400, just go blind. The position, whatever change is going to happen in this 1 week is not going to matter to our position. Why? Because we have taken position from June, and in this till that June, if your heartbeat has started, किधर है वो जून? इधर है, जैन नहीं, जून, सॉरी, ये जून है, जून. See 13 weeks, 13 बार्स बोल रहे हैं ना, जून एंड हो भी, not the June beginning, June end, मतलब जुलाई स्टार्ट, this 29 June. So total 13 bars, 91 days are in our hand. 13 weeks are in our hand. In 13 weeks, we need, okay, we have built our position in Bank Nifty, so we will directly relate levels in Bank Nifty. But just imagine, एक week में इतना सब हो जाने के बाद अपने को, we need not to react. We have started building our position in this week. 1 week it was down, next week it was up. It is going to happen. But we have built our position where the price only has a scope to move up only by a few thousands, 1000 points or 1500 points. That's all in Bank Nifty. Okay. But then if retailer is allowed or retailer is given that power, see, you are invested in bottom. How retailer will understand, sense this? What they need an impulse, they need some moves in the stocks where they can see big numbers. 5%, 7%, 8% से stock move हो गया, 11%, 15% से stock move हो गया upside. अभी ये तो नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब ये बॉटम बन गया, यहां से हम ऊपर जाएंगे. बट ऐसे नहीं होगा. जो रिटेलर को दिखाया जाएगा, दैट इज नॉट फॉर रिटेलर, दैट इज टू ट्रैप मोर एंड मोर रिटेलर्स. ऐसा मेरा मानना है एज पर टू लाइन्स का अंडरस्टैंडिंग. वी हैव चेक्ड ऑल द पॉइंट्स, सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं, सारे पैरामीटर्स आर मैचिंग. इवन इट हैज नॉट क्लोज बिलो 1600. 1600 के ऊपर भी क्लोज होता तो उसके ऊपर हम कॉल डाल देंगे या फिर कॉल बाय कर लेंगे या उसको सेव कर लेंगे, बट वो भी अभी नहीं हुआ है. वी नीड टू वेट फॉर दैट. 1600 इसमें तो फिर व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी, वी जस्ट नीड टू क्रॉस चेक. बट इन माय व्यू, since last half an hour, 40 minutes, what I'm explaining, I can clearly see price is coming to 1900. In between, the reversal of 2400s are okay. Still price will come to this point. Why? Because they have built their short position and their target will be achieved when it will be touching to 7200. They also build their buying position in stock. So derivative position, for derivative position, they are coming to this level. For stocks, they are going to buy some stock at this level. That's the reason this buying is not normal buying. DI and FI both might have buy in this position and market moved in this way. So that means if they are buying something at 100 rupees over there, the quantity will be thousands, and if they are buying something at 50, the quantity will be in the 10,000s, and the average will be lying near this or close to this base. That is how they are going to manipulate their position. Is Nifty clear to you? I am not talking about upside yet. We have, since last 40 minutes, we have not discussed about upside. Why? Because price has not given us clue of closing about 2400. The moment it is going to give us clue closing about 2400, I will think about it. Fine? Any question, confusion? Sir, is there any other range you can find out in between?
अभी तक तो नहीं मिला है मुझे, बट निफ्टी इज फॉलोइंग ओल्डर रेंजेस, बैंक निफ्टी माइट बी फॉलोइंग न्यू तो बैंक रेंजेस। निफ्टी में मुझे 950 का मिला है। हाँ, बैंक निफ्टी में इट माइट बी फॉलोइंग न्यू रेंजेस, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेट इट रिपीट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। और नहीं सर, जो आई हैव अ प्रूफ फॉर दैट, आई हैव अ प्रूफ फॉर दैट इन बैंक निफ्टी। इफ यू आर पुटिंग ए 1 आवर चार्ट ना, तो आप लास्ट 3 डेज का देखेंगे तो उन्होंने पूरा क्लोजिंग कंट्रोल लेवल पर 950 के अंदर ही किया है तीनों दिन का। तो यू आर सेइंग जो 750 था वो अभी 950 हो गया है, ऐसे? विच हाँ, साइड ऐसा आई मुझे शुड लग मार्क? रहा है। विच विच साइड, कहाँ से लो से मार्क करो, अप साइड या कैसे, नहीं, कहाँ से? 3 दिन का, लास्ट 3 दिन का निकालो आप 1 आवर पे। लास्ट 3 दिन तो इधर ही आ जाएंगे। हाँ, इसको भी देखेंगे आप, 950 के अंदर ही है। हाँ, ये तीनों दिन ना 950 के अंदर ही इसने सब कुछ किया है। यू आर सेइंग दिस इज 950? यस। नहीं दिस नहीं, इज, अगर आप पर डे वाइज, हाँ पर डे वाइज जाएंगे ना। यस। ये 950। अप्रोक्सीमेटली 950 के अंदर बात कर रहे हो, तो ये 850 दिखा रहा है, हाँ ये 850 दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, ये ऐसे आप बोल रहे हो क्या? हाँ, जैसे ये आप तीन बॉडी टू दिन है, बॉडी नाप रहे हैं, यस, मैंने बिग टू बिग लिया है। ये 3 हो गए, हाँ ठीक है। तो इसको अभी तक मैं कॉन्क्रीट नहीं समझूंगा, बिकॉज वी नीड ओके। मोर एंड मोर और दिस सर, इससे ग्रुप। पहले वाला भी है ना, ये वाला पैच जो बैक में आपको एक दिख रहा है ना, एम बना हुआ, ये नहीं, और पीछे वाले में जाइए। ये और यस यस, दैट वन, यस। ये भी 950 है, ऐसे वाला। यस। ओके, ठीक है। अब तो कुछ कुछ तो है इधर, इसने जो क्लू दिए हैं। इवन वो इसके पीछे एक और पैच है, वो भी 950 का ही है। हाँ, ये ये वाला। यस। यस, ये भी है, इसके पीछे एक और है। ये तो 950 का 1x और 2x भी नहीं नहीं, दिखा रहा है इसके क्या? ऊपर जो ग्रीन वाली बड़ी कैंडल है ना, वो। ये यस। यस। ओके, ठीक है, तो दैट इसमें कैन बहुत बी बार अ ऐसे रेंज, हाँ, सिग्निफिकेंस सो दिए दैट हैं। कैन बी अ रेंज, बिकॉज इट इज शोइंग मल्टीपल टाइम्स, so ये हो सकता है। अभी इसको हम कंफर्म, जैसे ही एक बड़ा रेंज मिल जाएगा, देयर शुड बी अ रिलेशन ऑफ 3 टाइम्स। जैसे कि 950 को 3 टाइम्स में कर रहा हूं, इमेजिन। 28,500। हाँ, उसको मैच कर रहा है, तो ये हो जाना चाहिए अपना सॉरी, नया रेंज। 2800। हाँ सही है। हाँ, 28। 2850, so I just need to mark 2850। माइट भी, अगर हम डे पे इसको लेंगे तो मे बी कुछ अदर रेंज बने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। बट 950 का सिग्निफिकेंस ने बहुत बार दिया। So 2850 should be this approximately दिखा रहा है। ये रिवर्सल नहीं आया, दैट इज ऑल्सो ओके। अप टू 2x, अप टू 2850 आना चाहिए, सो ये भी ठीक है। ये भी अंदर ही है क्या 2850 के? बाहर है थोड़ा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इसको, तो ये 1x हो जाता है, और स्लाइटली अब चला गया। तो डे को मैं पूछूंगा, भाई क्लैरिटी दे दो। तो डे का क्लैरिटी अगर हम लेने जा रहे हैं, देन क्लोजिंग ऊपर हो गया, दिस इज बॉडी टू बॉडी क्लोजिंग 2800, एंड दिस शुड बी अनदर 2800। तो वी आर विद इन दिस क्लोजिंग, मतलब ये 1x भी हो सकता है, तो इसका 1x भी है ये। सो स्टिल वॉट एवर व्यू वी आर कैरिंग इन निफ्टी, सिमिलर व्यू भी बैंक निफ्टी में कैरी हो रहा है। तो बैंक निफ्टी का पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, जैसे सर मैंने सर, बोला। इस बार ये बड़े वाले बॉक्स को जरा, ये जो अभी बॉटम आया था ना रिसेंट, यस यस, ये ऊपर जो रेड कैंडल है दो, वहां पर मेजर करना एक बार। कौन से वाले बॉक्स को? ये फेब में जो दो कैंडल बनी हुई है ना, यस, इस ये वाले को चार्ट को लगाना, यस यस यस। इसको बॉडी टू बॉडी देखो एक बार, थोड़ा सा एडजस्टमेंट बॉटम से करके कुछ निकलता है क्या?
बॉडी टू बॉडी तो ऐसे आ रहा है ये नहीं, इसके। नीचे जो रेड वाली कैंडल और ग्रीन वाली कैंडल है उसके साथ मिला के। नहीं, ये जो फैब के ये इधर की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में। आप, यस, ऐसा कुछ करके कुछ ये वीक आ पे में भी। रहा है ये इसका 3000। सिग्निफिकेंस हमको वीक पे, नहीं नहीं, वीक पे मिलेगा इसका सिग्निफिकेंस कुछ। वीक पे चला जाता हूँ। हाँ, मैंने इसको मेजर नहीं किया। 28,500 के अराउंड है क्या ये? देखता हूँ। अप्रोक्स। क्लोज, वेरी क्लोज। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते बट हम्म। और सर इसको यहाँ से लगाना, इसी बॉक्स को पेस्ट कीजिए यहाँ पर प्रीवियस डाउनफॉल पे। ये क्या इसका 2x इसने अपसाइड दिया, मतलब बॉटम से लगाइए इसको। क्या इसका 2x अपसाइड दिया है काइंड ऑफ करके? 2x तो या ये पहले का या रेंज नहीं और था बीच में बट एक ब्लू। ओके। ओके। तो ये 2x भी हो सकता है। यस यस, ऐसा कुछ ऐसा करके, भी हो यस सकता है। यस यस इसका 2x यस। इसको सर लेफ्ट में रखिए, लेफ्ट में इस वाले को, रिसेंट वाले को। इधर। नहीं 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 नहीं, हाँ, यस यस, करेक्ट करेक्ट, काइंड ऑफ बॉडी टू बॉडी। ये अपना 4320 का रेंज है तो ये क्लोज ओके। ऐसे लगेगा बट ठीक है। हाँ, तो पहले पिक्चर समझते हैं फिर इसका मैपिंग समझते हैं। 7:30 बजने को मैच। मैच कौन सा है आज? जाने दो ना, एमआई पहले वाला है रोकड़ा आएगा तभी तो रोकड़ा शायद। लगाएंगे। ठीक है। सी, सो इसमें भी देयर इज वन रेंज विच दे वर कैरिंग 4320। 4320 वाज एन इम्पोर्टेंट रेंज जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा था बहुत दिनों से। दिस इज 4320, 4320, 4320, 43, मतलब इफ आई स्टार्टेड काउंटिंग इट, 1 2 टाइम्स नहीं तोड़ा, 3 टाइम्स, ऊपर से नीचे नहीं तोड़ा, फोर्थ, फिफ्थ, 4 जून था ये, सिक्स्थ ये तोड़ा था। एंड देन वी थॉट अबाउट कि ये हो गया, फॉल शुरू हो गया। एंड देन वो सडन मैनिपुलेशन आके यहाँ से वापस हम ऊपर घूम गए। द मोमेंट इट ब्रोक अबव 4320, we forgot about the downside, and then again 4320 it could not close, but then this was very first close। यहाँ पे भी ये जो पैनिक अपमूव एक आया था, संडे का जो अपमूव था, ये संडे प्राइस ने ऊपर खुल गई थी, वो एक साइन होना चाहिए था। बट उसके बाद क्या हुआ, वी वेर वेटिंग फॉर द क्लोजिंग ऑफ 43 बिलो 4320। सो इस वीक में इट डिड नॉट गिव अस दैट क्लोजिंग। दैट मीन्स मार्केट इज स्टिल इन अप ट्रेंड। इमेजिन कितना फास्ट हुआ है ये। सो अंटिल दिस पॉइंट पूरे अप ट्रेंड में प्राइस कैन गो टू 6480। यस, इट हैज गॉन टू, ओके, फर्स्ट 6480 इज दिस। ये 6480 है। देन अगेन इट इज बियॉन्ड 6480। ये 6480 है। Then it was trying to extend uptrend, but it was already beyond the target. So if you remember our all the sessions, the moment when price crossed beyond 58,320, मैंने बोला था अभी मैं बैंक निफ्टी को एनालाइज करना छोड़ दूंगा क्योंकि आगे की लेवल मुझे भी पता नहीं है। दिस, बियॉन्ड दिस पॉइंट there was some random move happening and we should not focus on that. So that means this patch was randomly there waiting for something. So they bought price, but how long they can bring that price, how long they can manipulate, that is, there is also in mathematics. So they do not have capacity beyond certain points. And if you look into that, that is also coming around now. I can see closing to closing. This is also 28,500 suppose. So that can be a good sign for us. If it is 28,500, the new range will be either 29,000, 2,900 or 2850.
ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उतना ही मैनिपुलेट वो कर पाए, इसके आगे जा नहीं पाए. बट देन व्हाट हैज हैपेंड सडनली इन दिस वीक, everything was normal. Within next week, in the same week it has closed below 4320. इसका मतलब डिसीजन वीक के क्लोजिंग के बाद होगा. So in the middle of the week or the beginning of the week it has closed, but we will not go for downside just because we are in the middle of the week. And when we are waited for the week, after a week it has closed below 6480 as well. So that means this week has clearly defined that downtrend is started. And how long it can go? 3 times of 6480. Right? And then reversals can happen. So that means if the price is falling for 19,000, 6,000 points reversals can happen. Or the previous manipulation 4320, we can consider the price can take a reversal up to 4320. So that means there are two important control points. If price started taking reversal while moving down, so just answer this question. When price close below 6480, it is 6480, what is the capacity price can fall now? How long it can fall from this top? कितना दूर तक जा सकता है? आंसर बोलो फटाफट, चैट में बोलो, अनम्यूट करके बोलो. Times. 19,400. 19,400. हाँ, 3 times totally, ना? 3 times of 6480. If price has closed a primary range, मतलब 6480 close के नीचे close कर दिया, एक बार हुआ, हाँ. Correct. what is the next primary range for which price is running now? So that is 3 times of 6480, right? मतलब 19,400. तो Yes. 19,000 19,000 कितना है? टोटली 3 है कि 4 है? फिर ये 6480 क्लोज होने के बाद और 19,000. नहीं टोटल नहीं, फ्रॉम top दिस to पॉइंट 19. हाँ, यहाँ से 19. हाँ, सो नाउ 2 टाइम्स अभी भी बाकी है, ऐसा समझो. हाँ, 2 2 टाइम्स times. वाला. हाँ, तो इमेजिन, बट व्हेन प्राइस विल टेक अ रिवर्सल एंड वांट टू कंटिन्यू, क्या चाहिए प्राइस में? पहले 6480 के नीचे की क्लोजिंग एक्सटेंडेड दी है, यस दी है. Yes. इसके बाद रिवर्सल 6480 तक आ सकता है, यस आ सकता है. उसके बाद आ वो सकता है. कंटिन्यू जा सकता है नीचे, यस जा सकता है. जा हम सकता है. अपसाइड कब सोचेंगे? लेट द प्राइस क्लोज अबव 6480 फ्रॉम दिस लो, बॉडी टू बॉडी. Then we will start thinking about upside. Till then it is downside. ये कितना रिवर्सल हुआ है? ये आई थिंक अभी हुआ है 41 या 38 के अराउंड कुछ. सो मैं इसको 4320 ही पकड़ू? हाँ, यू कैन से. 5,000 प्लस है कुछ. 5,000 प्लस वीक्स टू हाँ, वीक्स अगर है, वीक टू वीक राइट? लेंगे तो हाँ 5,000 के हाँ, अराउंड इसका है. Yes. मतलब 5,000 27 दुने 54, 28 दुने 56, 28. 5,700 800 वीक टू वीक है क्या? Yes. See. 27 into 2 something. हाँ, तो 28 into 2. वीक टू वीक इट इज शोइंग 5,900. तो 6480 मतलब कितना दूर है? हम लोग इतने दूर है, अभी इतने से दूर है. पेशेंस हमारे यहां से यहां तक जाने तक वो किल करेगा ही डेफिनेटली, राइट? बॉडी टू बॉडी Yes. 4320 दिख रहा है. अभी वेयर वी बिल्ड आवर पोजीशन, हमने पोजीशन कहां पे बिल्ड की? ये पॉइंट था. यहां से जब पूरा रिवर्सल, मतलब इधर कितना आ सकता है? 1/3 बोलू मैं 1/3, मतलब एटलीस्ट 3,000. सॉरी, इफ दिस इज 6480, 4320 पे हम पोजीशन बनाएंगे तो वी वर सेफ. फिर इसके अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? 800, सॉरी 2160 पॉइंट्स, राइट? Yes. सपोज प्राइस हैज स्टार्टेड टेकिंग रिवर्सल, 2160 को क्रॉस कर दिया, 4320 को क्रॉस कर दिया, 6480 को क्रॉस कर ही दिया, देन ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज. दैट मीन्स इफ वी आर बिल्डिंग पोजीशन एट दिस पॉइंट, तो अपने पे रिस्क कितना है? 2100 पॉइंट ऑन स्पॉट. इसको मैप करेंगे तो 1000 पॉइंट्स ऑन
प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, राइट। और ओटीएम चले गए तो ये 1000 भी कितने हो सकते हैं? 700, 800, 500 हो सकता है, राइट। 800 यस So that is how we have taken our position, okay, where we are going to lose, ज्यादा से ज्यादा 700-800 रुपए चले जाएंगे अपने। तो 700 7 3 2100 होता है मैक्सिमम। 15 से 20 हजार का रिस्क है अपना, 15 से 20 हजार। और ये 15 से 20 हजार के रिस्क में इट इज गोइंग टू गिव अस एन क्लू कि ये 15 से 20 हजार लेके जाएगा या और कुछ देके जाएगा। अभी और कुछ कितना देके जाएगा, ये बहुत लोगों को आंसर चाहिए था, राइट, कि क्या होगा पोजीशन का और क्या क्या हो सकता है। व्हाट वर्स्ट कुड हैपन इज, सपोज आई बिल्ट माई पोजिशन एट दिस पॉइंट, जैसे कि यहां पे मैंने एक मॉनिटरिंग के लिए 54,000 पी 1300 में लिया है, उसमें से ऑलरेडी 400 पॉइंट्स डाउन या 300 पॉइंट डाउन है अभी। आई एम नॉट लुकिंग कितने पैसे डाउन है, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू इट कि 300 पॉइंट डाउन है। पोजीशन 1392 पे मुझे मिला है, जून 54। इसका लाइफ ये भी समझ में आता है क्या, कब लिया था? ब्रेकडाउन रहता है क्या? ब्रेकडाउन किधर ये रहेगा? सर आएगा ना अपनी हिस्ट्री में, जाइए सर, ऑर्डर हिस्ट्री में रहेगा। ऑर्डर हिस्ट्री में रहेगा ना, इधर के इधर दिखेगा क्या? इन्फो में इनको में आई थिंक नहीं आएगा मैम। ठीक है, मैं 1392 मैच करता हूं प्राइस। 1392 कौन सा है वो? 54,000 पीई। एंड आता है फिर, कोई रुकी रुकी आता है, मैंने देखा है। Let's check it now. 54,000 पी यही है ना, पुट 1600 यही है। तो वॉच लिस्ट में मैं डालता हूं और चार्ट लोड करता हूं, सी, एंड आई विल गो फॉर डेली। तो हमने पोजीशन यहां कहीं बिल्ड किया है, क्योंकि इसके पीछे प्राइस इधर है ही नहीं। पहले तो इतना दूर है, इधर तो हमने किया ही नहीं मार्च में, मतलब इसी दिन में हुआ है, राइट। ये तो समझ पा रहे हो? 1352 इधर ही आया था, मतलब ये 8 अप्रैल अगर है, 8 अप्रैल कहां पे थी प्राइस? 8 अप्रैल यहां पे, अप्रैल ना, 8 अप्रैल डे में जाता हूं, डे 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 डे, ये है, दिस इज 8 अप्रैल। और प्राइस यहां से इधर तक, मतलब यहां से इधर तक ही मूव हुई है अभी तक। अब ये कितना डिस्टेंस है, जस्ट ट्राई टू चेक इट फ्रॉम द लो। कितना है ये? 4320 के बियॉन्ड थे हम लोग, राइट। नीचे से 4320 के बियॉन्ड, और कहां तक जा सकते हैं? 6480। क्या हमने सेफ एरिया में पोजीशन ओपन की है? इज इट अ सेफ पोजीशन? जस्ट अ मोमेंट। इफ यू लुक इनटू बॉडी टू बॉडी, इतने पॉइंट्स का स्कोप है, अराउंड 700-800 पॉइंट ऊपर। बट इफ वी आर राइट, RSI is below in daily, price is below EMA. If we are right against this 700 point risk, I want price to fall. कितना मैं पकड़ू? जो भी हाई बनाएगा तो 6480 का मैक्सिमम हाई में पकड़ता हूं कि इफ प्राइस कैन टेक अ रिवर्सल अप टू दिस पॉइंट। अगर इसके ऊपर बना दिया, इफ प्राइस इज क्लोजिंग अबाउट दिस, वी नीड टू बुक आवर लॉसेस, नथिंग एल्स। उसमें कुछ भी सोचना नहीं है, ये डेली का क्लोजिंग है, वीकली के क्लोजिंग पे वो होगा। मतलब डेली में वो ऊपर नीचे करेगा, वो पैनिक भी अपने को सहना है। वो ऐसे नहीं कि यहां से 1000-10,000 पॉइंट शूट हो जाएगा, वो अपने को डेंट दे सकता है, इट कैन गिव अस अ डेंट ऑफ सर्टेन पॉइंट्स, बट इतना नहीं देगा। लेकिन अगेंस्ट दैट
if I am going to map, I am expecting 6480, जो कहां तक आ सकता है, यहां तक. दिस इज 6480. ठीक है. It is a downtrend, it can extend below 6480, right? So this could be the normal situation, and extended situation के लिए मैं ऐसा पकड़ता हूं कि ये कहां तक आया था बिफोर रिवर्सल. सपोज इधर तक आया था या इधर तक आया था 11,000 में, 10 या 8 पकड़ता हूं. तो एक्सटेंडेड में कहां तक पहुंच रहे, 48,640. ये मैक्सिमम डाउन साइड में पकड़ता हूं 48,640, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट. अभी क्लोजली समझना इसको, हम क्या करने जा रहे हैं और अगर ये हुआ तो क्या हो सकता है. दिस इज जून, वी आर हियर, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड जून प्राइस शुड टच हियर. अगर ये जून होने तक प्राइस इधर आया ही नहीं तो किस किस पोजीशन के साथ क्या क्या होगा. सो some might build a position around 49,000, right? 49,000 इधर है. कुछ लोगों ने बनाया पोजीशन 50 to 500, और कुछ भी रहेगा तो बता दो मुझे. I have built one of the position at 54,000. है, ज्यादा हो गया क्या? तो कमरवा की तलाश है. 54,000. और कौन सी पोजीशन है, कोई चैट में डाल रहा है क्या? 51,000 की एक भी. 51,000 जितना, जैसे सर मैंने एक बोला. 49,000 की भी तो थी. ये क्या 49,000 है ना, ये दिस इज 49,000, दिस इज 51,000, राइट? अभी 49,000 का प्रीमियम कितना है आज, वो हम देखेंगे. 49,000 पी इधर है 300 रुपीज, मतलब जिस टाइम पे ली थी 500 रुपए में दी रहेगी शायद, 550 कुछ ही है. 550, राइट? इसका मतलब जी. if 49,000 is running at 550, वो 550 में है, तो मार्केट शुड बी बिलो 49,000 बाय 550 पॉइंट्स. अगर जून 30, कौन सा एक्सपायरी, जून का एक्सपायरी जब ही है 28 या जून का क्या एक्सपायरी है, इधर है जून का एक्सपायरी. देखो इधर है, इधर भी नहीं है, इधर है जून का एक्सपायरी 29 जून, मतलब इधर किधर तो रहेगा लास्ट वीक. मतलब फ्रॉम दिस ड्यूरेशन टू दिस ड्यूरेशन, अगर प्राइस, इफ इमेजिन प्राइस स्टार्टेड ट्रैवलिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ ऊपर नहीं जा रहा हूं मैं, इसके ऊपर ऐसा करते 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 जून एंड में इफ प्राइस इज क्लोजिंग और गोइंग बिलो, इफ इट हैज गॉन बिलो दिस 49,000, तो इसके नीचे वी नीड 550 पॉइंट्स. मतलब किधर आना चाहिए, 48,400. इफ इट इज रनिंग एट 48,400, तो जो 550 वाला पोजीशन था, अगर जून एंड में हो रहा है, दैट इज गोइंग टू गेट 40 पॉइंट, मतलब वो पोजीशन 590 या 600 पे क्लोज होगा. किस किस को ये समझ में आया? मुझे नहीं समझ में आया. आपको नहीं समझ में आया, ये तो मेरे लिए ओके, ठीक है. अब बाद में इसका बात करते हैं. ओके. हाँ, बाकी किसी को भी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ. नहीं सर, ओके. बाउंसर था. ऐसा कैसे हो सकता है यार, कैसे लोग हो तुम लोग. अभी ना एक एक को लेके ना, मैं रुको, अब गए तुम लोग पोजीशन ओपन. नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए. ऐसे ही एक्सेल की जरूरत नहीं है. अभी सबको मंडे घबरा के निकाल देता हूं मैं पोजीशन से. देखो अभी तुम लोग, अभी वो पोजीशन
तुम्हें इतना डराना चाहिए ना, इतना कि तुम लोग बीच में निकल जाना, ऐसा शाप दे रहा हूं मैं। बिना सोचे समझे डोंट प्ले विथ योर मनी, बिकॉज इट इज योर हार्ड अर्न मनी। इमेजिन मैं आज बम ले रहा हूं, एक बम। ये बम के लिए मैंने 550 रुपए दिए। जस्ट अ मोमेंट, समवन इज एट द डोर। हेलो, आई एम बैक। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। अभी इमेजिन दिस, सबके प्रीमियम्स 54,000, 53,000, 52,000, 51,000, 50,000, 49,000 and 48,000. Okay. So suppose you have paid a premium for June expiry. 49,000 को आपने दिया है 550 रुपया। मार्केट इज एट, करंटली मार्केट इज एट कितना ही है? 55,900। कितना है? 55,900. 55,900 मतलब ये 55,000 हो गया एंड ये हो गया 56,000। थोड़ा और ऊपर भी जाना पड़ेगा शायद मुझे, तो इसको नीचे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, जून एक्सपायरी, जून इधर किधर, जून इधर लिखता हूँ। ठीक है, अभी हम हैं अप्रैल, मई एंड हर एक में 4 वीक पकड़ता हूं मैं। ठीक है, अभी आपको प्रीमियम का खेल बताता हूं आपको। मैच शुरू हो गया ना उधर, थोड़ा टाइम रुको। लेके ये नहीं समझोगे तो फिर कैसा ऐसे करोगे यार? व्हाई आर यू कैरिंग दिस पोजीशंस? डोंट एक्सपेक्ट नहीं एनीथिंग नहीं फ्रॉम सर, देम। समझ में आता है, या तो कुछ बीच में कुछ रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखता हूँ ना, अभी अभी ये लेता हूँ एग्जाम, रुको। जून, 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 जून। जो बम हमने लिया है, टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब लिखता हूं मैं, वो इधर जाके फटेगा, इधर जून के लास्ट वीक में। हमने आज पे किए 450, 550 रुपए। जस्ट टेल मी, जून के लास्ट वीक में इसको दिए गए, इफ आई एम पेइंग 550 रुपीज फॉर पुट, अभी मेरे को बराबर से आंसर देना। व्हाट, वेयर शुड बी द मार्केट टू गेट बैक ऑल बाय मनी? मार्केट कहां पे होना चाहिए एट जून? To क्योंकि get मेरे back पास the premium मैक्सिमम paid. इतना टाइम है। हाँ, नहीं, to get back the premium paid हम्म, and with profit. नहीं, मतलब उसके ऊपर ही पूरा amount नहीं, है. मुझे मेरा 550 रिटर्न चाहिए मार्केट से। आई नीड माई 550 बैक फ्रॉम मार्केट, बिकॉज आई एम
वर्किंग विथ ऑप्शंस। ये ऑप्शंस मतलब क्या है? लॉटरी है। ये लॉटरी कब और कैसे लगेगी? ये किसने बोला? नंजुंदा सर ने बोला है 48,500। 48,500 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 48,500, ठीक है? 48,500। अभी आप मुझे बताओ बाकी लोग, 48,500 पे अगर हम होंगे एंड इफ आई हैव पेड 550 रुपीज, मुझे कितना, मेरे 49,000 का प्रीमियम इफ एट लास्ट वीक और लास्ट डे ऑफ दैट लास्ट वीक ऑफ जून, इफ मार्केट रीच टू 48,500, तो मेरे 550 रुपए का क्या होगा? कैसे समझेंगे हम? हाउ टू कैलकुलेट दैट? सर उस समय ना आपका विक्स भी इम्प्रूव करेगा, सो दैट आपको वो आपके नो 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 प्रीमियम से नो एटलीस्ट नो नो 20 to 30% ज्यादा मिलेगा। वो जाने दो, विक्स विक्स ओके। सब निकाल दो। आई नीड अ सिंपलेस्ट कैलकुलेशन। हम्म स्पॉट जहां तक हम्म पहुंच के हम्म क्लोज हो रहा है, इमेजिन दिस इज थ्री हम्म 3:20, 3:30 बजने के हम्म, लिए अभी 10 मिनट बाकी है और ओके हम जून के लास्ट एक्सपायरी में बैठे हैं। ओके। उस एक्सपायरी में उस दिन पे मार्केट कितना होना चाहिए जिससे मुझे ये 550 वापस मिल सकते हैं? हाउ टू कैलकुलेट दैट? क्योंकि वी हैव टेकन ऑप्शंस फ्रॉम जून एक्सपायरी, वो भी मंथली लास्ट एक्सपायरी यस ना, लास्ट। इसका मतलब यस ये टाइम यस। बम टाइम वाइज इधर आके फटेगा। प्रीमियम वाइज वो ओके। ऊपर नीचे होगा, दैट आई डोंट केयर, बट टाइम वाइज ये दिन में अगर इधर नहीं हुआ तो वैसे ही मेरा 550 गया है, मुझे आज पता होना चाहिए, अदरवाइज आई शुड नॉट करेक्ट। सिट ऑन दिस ठीक पोजीशन। है, तो सर इसके लिए होगा कि जब मार्केट 54,000 पे था तो हम्म मैंने डिप्लॉय किया इसको 550 रुपीज में, हम्म करेक्ट? हम्म अभी सपोज दैट मार्केट 6480 की बाउंड्री को टच करने जाता है, हम्म तो मेरा प्रीमियम रह जाता है सपोज वहां पर 250 रुपए का या 200 रुपए का, हम्म ठीक है? हम्म अब आप बोल रहे हैं कि जब मार्केट 48,550 वो 500 पे आएगा हम्म तो मुझे कितना मिलेगा, नहीं करेक्ट है? नहीं, मैं बोल रहा तो हूं आई वॉन्ट माई 550 बैक अंटिल दिस ओके। जून, बिफोर दिस जून, और जून का जो हम्म लास्ट आखिरी वीक है, अगर मैं वहां तक हम्म रुकता हूं, वेयर हम्म आई नीड मार्केट एट व्हाट पोजीशन, मतलब मार्केट स्पॉट बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या होना चाहिए जिससे मुझे मेरे 550 तो वापस मिल जाएंगे? ये कैसे समझेगा अपने को? ये मतलब मेरे 550 आने के लिए हम्म। मार्केट कहाँ पे होना चाहिए? तो व्हाट शुड बी द मार्केट? हाँ बोलो फोर्टी बोलो। एट 450 ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं। कैसे आया? हाउ हाउ नहीं हैव यू नहीं कैलकुलेटेड? मैं मैं तो लाइक आई डोंट नो, मतलब व्हाट एवर इज नहीं। अगर आपका आई नो, आंसर मतलब बराबर है। मैं, आपका हाँ आंसर मेरा बराबर है, आंसर कैसे है बराबर बताओ? है। हाँ बराबर है। आई डिड व्हाट 49,000 माइनस 550 ऐसा करके मैंने किया। परफेक्ट, ऐसे ही ये लॉजिक है। दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक। विद इन अंटिल जून, जून या जून के कभी भी पहले, मैं जून पकड़ता हूं, जून के लास्ट वीक के लास्ट डे में, मतलब एक्सपायरी डे के पहले कभी भी मार्केट 48,000, क्यों? पहले इमेजिन करो, 49,000 का पुट है, मतलब इमेजिन मार्केट ने फॉल शुरू किया आज से, अप्रैल पूरा ऐसा गया, मई ऐसा गया, और मार्केट इधर खत्म हो गया, तो ये जीरो होगा कि नहीं होगा? 49 पहुंचा ही होगा नहीं जून तक। हो होगा। जाएगा जुबैर। 1 मिनट आप क्या अभी कौन सा लिया है, मतलब सिंपल। अभी 56, 42,000 लिया है एंड वी आर 49,000 एट, है। हाँ हाँ वी इस आर एट 56। हाँ, हाँ तो तो इस अभी अभी यू मुझे आर ऑप्शन सेइंग का कि क्लास ऊपर लेना पड़ेगा। नीचे हाँ जाना देखो, है। ऊपर गया नीचे गया सब कुछ हुआ, क्लोज हुआ हाँ 53,000 पे, जून एंड वी हैव हाँ नॉट रीच्ड 49,000, हम इधर ही अटके। तो ये हाँ, 550 तो जीरो होगा, गया मेरा 30 होगा, पैसा 100 ना। होगा, पूरा गया ना? क्यों गया? हाँ, क्यों गया? क्यों गया बोलेगा तो आई वाज एक्सपेक्ट, मतलब क्यों गया बोलेगा तो इट डिडंट कम देयर नो फॉर मी टू गेट अ प्रॉफिट। Exactly. Then that means I should know where market is going to reach, and according to that, I need to build my position. हाँ, तो 49 माइनस 550 मतलब 48,450 क्यों? होएगा। हाँ 48,450 क्यों? वही क्यों? क्योंकि
ऑलवेज जो ऑप्शन प्रीमियम वॉट एवर यू आर पेइंग इट हैज टू कंपोनेंट्स, ये हमने हाँ बचपन में सीखा था। दो हाँ कंपोनेंट क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक हाँ, तो मैं आईवी इसको और प्योर मैथमेटिक्स में बोलता हूं, हम कितना पानी में है और कितना पानी के ऊपर है। अब 49 अंदर हम अगर नहीं है, 49 के अंदर अगर हम नहीं है मतलब पुट है ना, तो डायरेक्शन मतलब नीचे वाला डायरेक्शन चाहिए मुझे, राइट। तो नीचे 49 के नीचे अगर किसी भी दिन इन जून तक एनी टाइम इफ आई एम नॉट गोइंग बिलो 49,000 एग्जैक्टली, कौन सा टिकट बाय किया 49,000, दिस ऑल इज जीरो। इसका मतलब ये जो पैसा है इसके जो दो पार्ट है, जिसको मैं रैपर वाला और छोटा और एक अच्छा एग्जांपल वाला, इसमें 90% हवा होता है, 10% पोटैटो होता है। ये जो आपने खरीदा है ये 5 आपने हवे का दिया है, पोटैटो है ही नहीं इसमें। पोटैटो कब शुरू होगा, 49 के नीचे जब मार्केट आना शुरू होगा तो आपका पैसा बचना शुरू होगा। और कितना नीचे आना चाहिए, सिंपलेस्ट कैलकुलेशन इज 49,000 माइनस प्रीमियम यू पेड, मार्केट शुड रीच टू दैट पॉइंट। मार्केट अगर 48,450 पे नहीं पहुंच रहा है तो आज आपने जो 550 दिया है वो ये पूरे जून एंड तक जीरो होने वाला है आपके आंखों के सामने। यू शुड एग्जैक्टली नो मार्केट इज गोइंग टू टच 48,450, खत्म। इसका मतलब अगर मैं जितना क्लोज रहूं मार्केट के, वेयर इज द मार्केट राइट नाउ, कितना है 55,900, राइट। मतलब मैं किधर हूं, इधर हूं, किधर, तो इसके नीचे हूं, 55,900 ना, 56 के नीचे हूं। या हाँ, अभी देखो अगर मैं उसके नीचे हूं तो जैसे मैंने बोला, हम जब डिसीजन लेना चाह रहे थे तब वो 2,000 पॉइंट का मूव आया नहीं था, इसीलिए 49,000 भी सेफ लग रहा था। बाद में मैंने बोला शिफ्ट ऑल योर पोजीशन टू 52,500 पे। क्यों बोला मैंने, क्योंकि वाई दिस कुड बी मोर सेफ, ये क्यों मोर सेफ होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 2,000 पॉइंट ऊपर आ गए, तो हम जो सब कुछ यहां पे सोच रहे थे वो सब कुछ इसके लिए ज्यादा सेफ है। इसका प्रीमियम आज हम 1,000 रुपए दे रहे हैं, इमेजिन। और गलती से मार्केट, फिर अपने को 49 पे नहीं जाना चाहिए, आगे जाते जाते 1,000 दिया है ना, तो कितना नीचे चाहिए, 51,500 तक आया। 500 मतलब प्राइस अगर 51,500 तक आया तो अपना 1,000 का 1,000 वापस आ रहा है। इमेजिन इफ प्राइस इज क्लोजिंग बिलो दिस विद इन जून, जून के लास्ट दिन पे अगर कर रहा है तो जो मिल रहा है वो अपना, जून के पहले कर रहा है तो आपको डेफिनेटली 1,000 से ऊपर ही मिलेगा। इसका मतलब 50 to 500 का अगर पोजीशन में आपको प्रॉफिट कमाना है तो 51,500 के नीचे मार्केट जब जाना शुरू होगा देन योर 1,000 विल हैव 1,100 500 रुपीज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कुछ? यस अभी मुझे बताओ कि 50 to 500 में मैंने 1,000 का प्रीमियम दिया है, इफ मुझे 2,500 होना चाहिए प्रीमियम, मतलब इफ आई वांट प्रॉफिट ऑफ 1,500 रुपीज, जून से पहले मार्केट कहां पे होना चाहिए फिर? इसको इससे प्लस करेंगे तो जो स्ट्राइक आएगा वहां पे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे कि स्ट्राइक 2,500 माइनस करेंगे सर, एक सेकंड, अपने को ज्यादा चाहिए ना, हाँ माइनस करेंगे, माइनस पुट साइड है ना, सो दिस माइनस शुड गो डीपर इन द आपको, वाटर। यस, Correct. डीप इन द वाटर। हम 50,000 पानी में और गहरे जाएंगे, अगर हम 50,000 पहुंचे तो ही ये 2,500 होगा। तो हम इमेजिनरी ख्याल नहीं पका रहे हैं, वी आर प्लानिंग अ पोजीशन। मैंने 54,000 लिया है, इसको जितना मैंने रिस्क समझू 1,400 का प्रीमियम दिया है। नाउ टेल मी, ये 1,400 का रिस्क ज्यादा है या ये 550 का रिस्क ज्यादा है? 550 का ज्यादा, मतलब किस वे में ज्यादा, क्या व्हाट डिड यू से, कौन सा If I have paid this, सर 550 का रिस्क ज्यादा है, हाँ वो नजदीक है ना आपके, यस। हाँ, वो दूर है बहुत। सो 54 यहाँ पे है, 54 किधर है, इधर, ये 54 है।
फॉर दिस 54,000 मार्केट मेरे अगेंस्ट इधर से जा सकता है इतना दूर, ये मुझे पता है। तो मेरा 1400 दिया है वो 700 हो सकता है, ऐसा मैं पकड़ के चल रहा हूं। करंटली कितना दे रहा है वो मुझे, पोजीशन अगर देखेंगे मैंने 1400 दिया था, अभी वो 1000 बन गया है, ठीक है। और ऊपर 2000 पॉइंट जाएगा तो और ये मुझे और मतलब हाफ तक तो जा सकता है। इसका मतलब हाफ गया मतलब 21,000 तो इसमें मेरा गया ही है ऑलरेडी। उस टाइम पे मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, 21,000 गॉन ऑलरेडी, पकड़ के ही चलूंगा मैं। तब तक ना मैं सोचूंगा ना कुछ करूंगा, मतलब 4680 जाना चाहिए ना मार्केट ऊपर। इफ यू थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ट, इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, वॉट एवर प्रीमियम आई एम गोइंग टू गेट, वो कितना हो सकता है, 1400 के नीचे होगा ना, 1000 के भी नीचे होगा। अभी इट इज शोइंग 1000, तो वो 700 के आसपास होगा, 600 के आसपास। आई विल एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम फॉर अस। अगर गलती से मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग एंड इफ इट इज फॉलिंग टिल 48,000, मैंने लेके रखा है 54 और वो 48,000 आ गया, तो कितना प्रीमियम होगा? हाउ टू कैलकुलेट दैट? सिंपल, मैंने 54 लिया था, मैंने 1400 दिया है, आई एम सेइंग मार्केट अगर 49 पहुंच गया तो सिंपल कैलकुलेशन इज व्हाट, 54 माइनस 49, मतलब मेरा प्रीमियम 5,000 होगा, बट उसमें से 1400 मेरा ऑलरेडी पॉकेट से गया है, तो मेरा प्रॉफिट कितने प्रीमियम का होगा? 5,000 माइनस 36, इतना ही मेरा प्रॉफिट होगा। 36 मतलब इंटू 30, दिस इज माई प्रॉफिट ओनली। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, नथिंग रॉकेट साइंस। ₹1,00,000 मेरा प्रॉफिट होगा अगेंस्ट द रिस्क ऑफ 20,000। जितना क्लोज में रहूंगा, द प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट इज गोइंग टू फॉल और नॉट फॉल, मतलब अगर 54 के नीचे 1400 पॉइंट्स भी रहा एट द जून एंड, कितना नीचे होना चाहिए? कैसे होगा? 4 minus 14. दिस माइनस सिंपल 1400, मतलब सॉरी 52,600 के नीचे। 52,600. एम आई श्योर कि 52,600 के नीचे रहेगा? इधर जाके चार्ट पे मैं देखता हूं 52,600 किधर है, इधर है क्या? यहां से मार्केट इतना नीचे, जून इधर बैठा है, जून एंड इज दिस, क्या मार्केट में इतना भी पावर नहीं है कि यहां से यहां तक आ जाएगा? मुझे लग रहा है आज ये है पावर, एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग ऑन दिस पोजीशन। यहां तक अगर जून के एंड में भी आया तो मेरा 1400 का प्रीमियम आई एम गेटिंग रिटर्न। समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आया? पार्डन मी, Can I tell something, sir? यस सर प्लीज। Your target of 48,000 odd is quite correct. Bank Nifty is expected to come till 47,640. या ओके, 47,640 तक आ रहा है, weekly low. ओके, then it is good. The weekly swing low. ओनली वन थिंग वी नीडेड, अगर मतलब एज पर सुरेश सर बोल रहे कि ये आ जाएगा, अभी हमें हमारे पैसे अच्छा बनाने के लिए जून एक्सपायरी ली है ना, तो जून के पहले आना जरूरी है। दैट इज द ओनली चैलेंज। टू मैनेज दैट चैलेंज वी नीड नॉट टू मॉनिटर नाउ प्रीमियम्स, वो कुछ भी दिखाएंगे वो फर्क ही नहीं पड़ता है। वी जस्ट नीड टू मॉनिटर दिस लेवल, क्या मार्केट 6480 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है? नहीं दिया तो डेफिनेटली वो इधर तक आएगा। अभी सेकेंड चैलेंज क्या है? इफ इट इज नॉट क्लोजिंग अबाउट दिस, देन जून तक वो किधर तक जा सकता है, उसके अंदर हमारा पोजीशन बनना चाहिए। मतलब इफ आई सेंस कि वो 51 जा रहा है तो मैं 52 पे बैठा हुआ होना चाहिए, तो एटलीस्ट मैंने जो प्रीमियम दिया वो सेफ है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम गोइंग टू गेट सम एडिशनल मनी। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से इफ इट इज मूविंग फास्ट, जो किट्टू जी बोल रहे थे कि विक्स बढ़ गया, ज्यादा हो गया, वॉटेवर, और हम फास्ट जून आने से पहले इफ वी आर मूविंग फास्ट, तो आपका इधर जो 500 का प्रीमियम इसके लिए दिया था वो भी 1000 बन सकता है। डज नॉट, मार्केट विल नॉट केयर बिकॉज वी आर बिफोर टाइम। देन अगर टाइम के पहले हम भाग रहे हैं तो उसमें एडिशनल प्रीमियम आता रहेगा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। द हाईएस्ट रिस्क इज जून मंथली एक्सपायरी के पहले हम कहां पे हैं, ये जानना जरूरी है।
सो व्हाट आई एम सेंसिंग, एटलीस्ट 6480 नया कवर होना चाहिए, मतलब 50,000 तो अगर हम पहुंच गए जून के पहले, एवरीथिंग इज सेफ. इफ योर पोजीशन इज बियॉन्ड बिलो 50,000, तो ट्राई टू स्विच टू क्लोजर टू, एज पर योर कैपेसिटी, ट्राई टू सिट क्लोजर टू एटीएम. इसका मतलब क्या, अभी भी वो चांस है, मंडे भी अगर मिला तो 54,000 55,000 पी वाला पोजीशन प्रीमियम बड़ा दिखेगा. नंजुंदा सर भी बोल रहे कि 47,500 बिलो बिफोर 15 जून भी आ सकता है. तो बहुत ही अच्छा है. अगर ऐसा हुआ तो देन हमारे सारे पोजीशन प्रॉफिट में होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट. टेक ए डिसीजन मिड ऑफ मे सर. मिड ऑफ में मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि जितने बड़े अपमूव्स आ रहे हैं ना, रिवर्सल एक तो आ गया अभी, अब और एक कब आएगा, 6480 के बाद आएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर कैन बी 2 6480 कमिंग ना. अभी तो नेक्स्ट 6480 आना चाहिए. तो मिड ऑफ मे में हम वापस इधर ही आ जाएंगे, एंड देन वी मे नॉट गेट अ नेक्स्ट 6480 का मूव. इधर ही हमें मे में कट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि वो पुल बैक जो आएगा आफ्टर 6480, इट विल अगेन गेन अ कैपेसिटी ऑफ अ पुल बैक, और वो पुल बैक 4,000 पॉइंट्स का नहीं होना चाहिए. देन वी आर गोइंग टू लूज. सो दैट मीन्स विद इन जून, बिटवीन जून, हमें एक ऐसा मूव चाहिए जो 6,000 तक होल्ड करा जाए, या होल्ड हो, और ऊपर भी जाए तो भी नीचे वापस आ सके. मतलब एटलीस्ट वी शुड रीच टू सेम पोजीशन. सो दैट्स द रीजन वी आर बाइंग दिस एडिशनल टाइम ऑफ जून एक्सपायरी. अदरवाइज नहीं, बट सर अगर इसने ट्रैप डाला है, यहाँ पर ट्रैप डाला है, तो इट मीन्स ये 19,000 के बियॉन्ड तो जाएगा. 19 बिलो, क्योंकि इसने एडिशनल ट्रैप डाला है ना सर. हाँ वो जाएगा ना, वो जाने दो, लेकिन उस पे हम कुछ नहीं कर सकते. सी माई नहीं, तो प्रीमियम फिर ये फास्ट जाना चाहिए ना, फिर ये फास्ट जाना चाहिए. जाना चाहिए, जाएगा. वो सब, वो जो बम डालेंगे या वॉट एवर दे वांट टू डू, जो जब करेंगे तब होगा. लेकिन अभी मेरे हाथ में एक ही कंट्रोल है कि मैंने जो प्रीमियम दिया है, इज इट सेफ और नॉट. एवरी नाइट उसके डिसीजन. आज भी आप सोए नहीं रहेंगे, मंडे उठ के देखना पड़ेगा प्रीमियम, बराबर है, कि क्या हो रहा है. 500 का 200 नहीं हो रहा है ना, फिर 100 पे डिसीजन ले लूं या एडिशनल पोजीशन ऐड कर दूं. ये कहां पे हमें पता चलेगा. वी जस्ट नीड अ क्लोजिंग. इसके ऊपर वाला क्लोजिंग है तो वी नीड टू एग्जिट ऑल दी पोजीशंस. यहां से अगर 800 के नीचे, मतलब 2160 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, कहीं से भी रिवर्सल होके, सो अपना पोजीशन सेफ हो जाएगा 6480 के लिए. उसके बाद पीसफुल नींद है, आराम से सो सकते हो. कब तक, जब तक इट इज नॉट एक्सटेंडिंग बिलो 6480, और रिवर्सल आ जाएगा. रिवर्सल भी कैसे आइडेंटिफाई होगा इस जर्नी में, इट कैन गो बियॉन्ड, सपोज कितना 900 या जो भी प्रीमियम है, 900 के ऊपर चला गया तो समझेगा अपने को. बट वो इमेजिनरी है सब. वो प्राइस अपने को आज पता नहीं है हाउ इट इज गोइंग टू ट्रेवल. वी आर नॉट गोइंग टू नो इट बिफोर. वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट. एक लॉट लेके आप अगर जिगरा ऊपर नीचे हो रहा है, सो आई विल ऑल्सो से डोंट वेट फॉर दिस मेनी वीक्स. जिधर आपका प्रीमियम वापस मिल रहा है उधर ही निकल जाओ. अगर आपको आज ही लग रहा है कि आपका 20,000 गया तो ही इसको कैरी करके देखना. इसका मतलब क्या है, 49,000 मैंने पहले बोल दिया, इट इज नॉट सेफ. हार्डली देयर इज अ वेरी शॉर्ट मार्जिन, मतलब 1,000 रुपए नीचे रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है. बट वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो में हम नहीं काम करेंगे. दिस कुड बी गुड सिनारियो, दिस इज द बेटर, दिस कुड बी द बेस्ट सिनारियो. इसके पास, इसके नीचे तो रहेगा ही, इसके नीचे रह सकता है. इसके नीचे जितना होगा उतना अपना, इसके नीचे होगा कि नहीं पता नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि ये 3,000 का पुल बैक आ गया. जब हम सोच रहे थे तब हम इधर थे, या इधर थे सॉरी, उसके बाद 2,000 का पुल बैक आ गया. इसलिए हमको भी हमारा सोच 49 से उठा के 51 में रखना, 52 में रखना चाहिए. इसीलिए आई हैव आस्क्ड एवरीवन टू स्विच टू 52,500, एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड. दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, हाउ ऑप्शन प्रीमियम मूव्स, ये मैं यहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं. एंड इफ यू नो द प्राइस, यू कैन चेक द रिएक्शन ऑफ द प्रीमियम. आपके जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस है, प्लीज टेक अ हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड टू अंडरस्टैंड ऑप्शन प्रीमियम, कोई अच्छा ऑप्शन प्रीमियम वाला क्लास लगा दो. फॉर मी दिस इज हाउ वी वर्क.
54 और मैंने प्रीमियम पे किया है. वी शुड नो मार्केट कहां पे जा रहा है. जस्ट माइनस जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, 51 तक जा रहा है ऐसे आपको लग रहा है, यू शुड हैव वेरी स्ट्रांग स्टडी कि 51 तक जा रहा है. तो 54 माइनस 51, दिस इज द प्रीमियम विल बी देयर इन योर ऑप्शन. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी पेड 1400, दैट मीन्स इसमें से 1400 रिमूव कर दो, दैट इज योर रेसिड्यू एंड दैट इज योर प्रॉफिट. 1600 का प्रॉफिट. 1600 का प्रॉफिट मतलब 30 रुपए के हिसाब से ये वाला लॉटरी आपको दे दिया है सिर्फ एंड सिर्फ 48,000 रुपीज. दैट्स ऑल. ठीक है, हाँ सर. इतना ही बताना था. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी पोजीशन. जितने भी पोजीशन ओपन है 51,000 के नीचे, मतलब यहां से 6480 के नीचे जो भी चीजें हैं वो अनसर्टन है. इमेजिन, सो 49,000 आपका है पोजीशन. द मूवमेंट मार्केट इज टर्निंग यूर साइड. 500 का प्रीमियम 450 भी दिख रहा है आपको, 550 का 450 या 500 आ रहा है. स्विच योर पोजीशन, बुक दैट प्रॉफिट, गो टू द पोजीशन. और अगर हमें एक अच्छा एक मौका मिला कि हमारा सेम प्राइस पे हम आ गए ऑलमोस्ट, अगर हम ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आ गए जितना प्रीमियम हमने दिया है, वॉट एवर प्रीमियम वी हैव पेड, एंड वी आर कमिंग टू सेम और हायर प्राइस, मतलब हम थोड़ा प्रॉफिट में हैं. एंड इफ वी गेट अ चांस कि पुल बैक है, वो पुल बैक है, वी विल ट्राई टू स्विच आवर पोजीशन टू जुलाई इफ नीडेड. अभी नहीं करेंगे, अभी जरूरत इतनी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम होता है, जून भी बहुत टाइम है. ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ. हाउ मैथ्स शुड बी डन वो भी मैंने बता दिया. जून 29 इधर आ रहा है, एक्सपायरी 25 या कहीं कभी तो रहेगा, लिखा हुआ रहेगा. कब है एक्सपायरी? होली कब है? ये कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ना, इसमें नहीं आता यार, वो कोई दूसरे सही वही प्लेटफॉर्म में डेट के साथ आता है. तो देख लेना एक्सपायरी कब है. लेकिन मैथ्स वाइज ये दिखा रहा है अपने को, वी हैव कंप्लीट 50 डेज इन हैंड. 80 टोटल डेज है, 50 वर्किंग डेज है. 52 प्लस वर्किंग डेज में प्राइस इतना भाग सकता है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. 8 बज गए यार. क्विकली गोल्ड का देख लेते हैं. सर आपके अकॉर्डिंग ये कैसे आना चाहिए, मतलब? ये तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो शार्प ही आना चाहिए क्योंकि यहां से यहां तक जो गया और 1600 भी क्रॉस नहीं कर पाया. तो मुझे वो कोविड वाला वो फॉल याद आता है जहां पे आप अभी, आज मेरे पास टाइम कम है, अदरवाइज मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता. ये वाला जो था ना, ऐसा राइज है तो ऐसा फॉल ही आना चाहिए. यहां से यहां फास्ट शार्प गया है, वैसे ही वो हुआ है. तो वैसे ही मतलब यहां से यहां हम देखेंगे तो ये +1x और -2x वाला जर्नी है. सिमिलरली 2800, हाँ, एक तरीके से सर इसने गैप डाउन ही खोला है इधर भी. हाँ, तो 2800 का 2 टाइम्स ऊपर गया है, मतलब 1x तक गया है, और वो 2800 का नीचे, मतलब यहां से ये और यहां से नीचे काउंट करोगे तो सेम ही है. वैसा होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है. बट मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मार्केट से. लेट द मार्केट बिहेव. मतलब ये 4200 ऊपर और 4200 नीचे इधर, तो +1x -2x का जर्नी था, ये वैसे ही होगा. इसको खोल के 1 आवर पे देखोगे तो वैसे ही दिखेगा. आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक दैट ओनली, बट कैसे होगा वो लेट द मार्केट डू इट. क्योंकि वो 6480 के बाद आया है तो नीचे तो जाना ही है, ऊपर जाने के चांसेस आई डोंट सी एनी चांसेस. ये यहां तक टच करेगा तो भी वो वीक होगा, टच करेगा. एंड RSI इज स्टिल मेंटेन्ड. RSI स्टिल टेलिंग अस कि इट हैज अ कैपेसिटी टू गो डाउन. इतना पुल बैक होने बट के सर बाद वीकली वाला बुलिश है. इसीलिए ऊपर है ना अभी. वीकली वाला जो बुलिश है ना, ये वाला या ये वाला जो दिख रहा है हमें, ये होना ही है बुलिश, क्योंकि उसको यहां तक आने का स्कोप है ना.
प्राइस को यहां तक आने का स्कोप है, इसके बाद वीकली नीचे यस जाएगा, यहां तक आएगा ही नहीं तो वीकली जाएगा ही नहीं, बट दिस टाइम वी कुड सी प्राइस इज कमिंग टू 52, इट 51, 52 51 आएगा, ओके वो आना चाहिए। क्यों आएगा कैसे आएगा मुझे नहीं पता, बट होना है, बिकॉज 6480 तोड़ा है, वो भी 58 320 के बाद तोड़ा है, मतलब उसको 19,000 तो देना ही है, वो कैसे देना है उसको डिसाइड करने दो, लेकिन 19,000 देने के लिए उसको 6480 तोड़ना था, उसने तोड़ भी दिया है, एंड इट इज रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग। 23 321 तक इट इज गोइंग टू कम इन दिस टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, नंजुंदा सर बोल रहे हैं, एंड अगर वैसे उधर भी आ गया तो ऑल गुड, उसके साथ बैंक निफ्टी को आना ही है फिर। ठीक है, अब मेरे पास यस टाइम सर, की गोल्ड कमी का होने बताइए के ना। कारण गोल्ड गोल्ड का चार्ट क्या आपके पास है, लोड कर दोगे? सर मेरे मोबाइल में है। मोबाइल में है अभी, कहाँ पे किस में जाऊँ, इन्वेस्टिंग में मैं जाऊँ? मोबाइल से हाँ, इन्वेस्टिंग में जाइए। ये ऊपर आ तो रहा है XAUUSD। देखते हैं, आ तो रहा है लेकिन हम्म तो इसको डायरेक्ट वीक पे प्लॉट कर दीजिए। 860 इसका बड़ा रेंज है। एक मिनट, इंडिया में किस नाम से आता है सर ये? कुछ आइडिया है किसी को? नील सर को रहेगा, मैं सब तो मैंने तो दिया वही नाम पे। नहीं, वो जो आपने डेल्टा पे दिया है वो? हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, वो भी अभी के यूएसडी लिए में है ना ट्रेड? नहीं नहीं, इंडियन करेंसी में है। इंडियन करेंसी देखने के लिए है। अच्छा, ट्रेड नहीं मिलेगा पर देखने के लिए मिलेगा। बट ओ, उसका ये नहीं समझ पाएंगे, उसका चार्ट लिमिटेड रहेगा, और क्योंकि ऑप्शन चार्ट नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं सर, उस दिन हमने निकाला था ना, वो क्या था? अच्छा अच्छा, वो गोल्ड एफ्यूटी फ्यूचर करके सर्च करिए, हाँ, INR निकाली ओके की तुकली गोल्ड फ्यूचर INR। मिलाओ तो सर, ये फोर चालते ट्वेंटी की नहीं है, बन थ्री जाएगा। ट्वेंटी फाइव है। दूसरा, एक मिनट, हाँ हम्म हाँ बोलिए। सर इसका बड़ा रेंज है 860, 860। 860, एट हाँ, सिक्सटी ये वीकली हो गया, लगाइए इसको। यस। ये हो गया वीकली, वीक किधर है भाई, हम्म वीकली, हाँ, 860 पे इसने वीक टू वीक भी, बॉडी टू बॉडी भी क्लोज कर दिया। हम्म यस। हम्म ठीक है, इसका छोटा रेंज है इसने 325। अभी यहाँ इसने क्या किया, एडिशनल मैनिपुलेशन डाला डे पे। 325 तो ये है, नहीं गया ना ऊपर, लेकिन ये नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, बट अगर अभी इसको डे पर कोई देखेगा ना, तो ये क्या चीज किया इसने, मैं उसका सिग्निफिकेंस बता रही हूँ। इसको 1 आवर के चार्ट पे कीजिए आप। 1 आवर पे लेके जाऊं? हाँ, 1 आवर पे कीजिए। हम्म हाँ, ये जो 325 का जो आपने लगाया है ना, हम्म इसको इसकी 1 आवर की बॉडी टू बॉडी रख दीजिए, तो इसने +1x किया है, ऐसे करके। 325 की बॉडी, यस यस हम्म यस। इसने क्या है यहाँ पर ना, इसने मुझे भी कंफ्यूज किया, हम्म ऐसे करके। ये तो फिर वो फोर मुझे आवर पे थोड़ा, होगा बॉडी टू नहीं बॉडी। हाँ मुझे हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉइस तो है वहां पे। नहीं, 4 आवर पे स्विच कीजिए, मैंने इसका कहीं तो 4 आवर देखा है, था ये। इसका 4 आवर रह यस सकता है, क्योंकि ये हम्म, यस, 4 आवर पे है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, वी आर इन 1x। हाँ, तो फिर मैंने कल वीकली पे, क्योंकि यहाँ पर ना इसने मेरा स्टॉप लॉस खाया था इधर कि ऊपर, ये जाना नहीं था। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हम्म पर मेरा इसने करीबन करीबन $500 की समथिंग स्टॉप लॉस लिया है। ठीक है ली। तो फिर मैंने सोचा कि इसने ऐसा क्यों किया। हम्म 1x पे है, इसको देखते हैं, फिर इसके नीचे आएगा तो ये होगा, वो ढाल रहे फटाफट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बट सर अभी इसने वीक पे क्या किया ना, 860 क्लोज किया है, ये तो श्योर है
के नीचे जाएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि इसने 860 का ब्रेक लगाया है, प्रीवियस जर्नी में इसने कहीं भी नहीं लगाया है। अभी इसने क्या किया, ये 1x वाला सिनेरियो दिया, और उससे पहले ये जो लोअर हाई बनाया ना इसने, यहाँ से हमारा 860 का टॉप है, हाँ, यहाँ पर भी इसने सेम सिनेरियो क्रिएट किया था, 1x वाला लेकिन ये फंडा। पूरा पूरा 860 गया था क्या ऊपर? यस यस, ऐसा करके, यस। तो वो सिनेरियो कट करके इसने यहाँ पर भी अप्रोच किया, बट यहाँ पर इस बार ही बॉटम से 860 लेके नहीं गया, और क्लोजिंग इसने बियॉन्ड दी है वीकली भी, तो व्यू इज स्टिल इंटैक्ट डाउन साइड। बट डाउन साइड सेफ इसके बाद आएगा तो करना, हाँ, मतलब अभी सेफ आप इसके बाद आएगा। अभी आप हाँ, मैंने पोजीशन में नहीं टॉप होने पे शॉर्ट किया हुआ है। नहीं, मैं हूँ, हो, लेकिन इसके ऊपर क्लोज जाएगा तो डोंट फाइट। एग्जिट है, तो हाँ, एग्जिट है, अपने को ऊपर क्योंकि से किधर भी मिड से ऐसा क्लोजिंग मिलेगा, फिर वो क्लोजिंग अपने काम का है। नहीं, यहाँ पर भी इसने क्लोजिंग दी है, मैं एक और बताती हूँ, इसका छोटा रेंज है 120 पॉइंट का, $120 का, 120 का, वो ओके। इसने ब्रेक किया है, आराम से ब्रेक किया, बॉडी टू बॉडी भी। अगर वो किया है दैट इज ओके, बट स्टिल मैं बोलूंगा ये बाउंड्री 1x का बाउंड्री समझ के हम जो कर रहे हैं, इफ इट इज क्लोजिंग अबव 1x का बाउंड्री, तो डोंट फाइट टिल दिस 6 जो भी हाँ, 8 आई विल 860। एग्जिट, आई विल एग्जिट, हाँ, यस, क्योंकि यहाँ पर मेरे $10 का ये स्टॉप लॉस है बस। हाँ, तो यहाँ पे जितना भी ऊपर बीच में भी घूमेगा ना, तो इसके बाद ये वाला क्लोजिंग, मतलब जो जो 325 वाला क्लोजिंग मिलेगा ना, किधर से भी घूमने दो, यहाँ पे अच्छा खासा सेफ हो जाओगे आप। इतना इसमें जितना जा रहा है ना ऊपर जाने में, इधर ही छोड़ दिया ना, रिटर्न आने में आप इसके कैसे नजदीक कैसे? ही रहोगे। ये ऐसा घूम सकता है ना, ये ऐसा अभी ऐसा जा रहा है समझो, तो ये पूरा यस 860 जाएगा कि नहीं पता नहीं, ऐसे भी घूम जाएगा, ऐसे भी घूम जाएगा। यस तो जो यहां से घूम के पूरा 325 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता इधर आने को। यस, करेक्ट करेक्ट तो है, वो अभी वो भी आपका सही इधर था है। ना, अभी आपका इधर था, ज्यादा से ज्यादा अगर ये बीच में से घूमा तो आपको इधर ही किधर तो मिलेगा, मतलब घूम के 360 पॉइंट्स इधर आता है। अगर एग्जैक्ट यस टोटल ऊपर गया तो अपने को बेस्ट इधर ही मिल जाएगा, मतलब आप इधर ये तो केमिकल रिएक्शन सब मार्केट को समझ में ही नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे निकल जाओगे, उसको आने दो ना घूम के कितना आता है, और आ जाएगा तो वापस करेक्ट उधर ही एंट्री मिल रहा है आपको, सिर्फ करेक्ट है। ये केमिकल लोचा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, वो भी है, प्लस वीक पे सर इसने अप्रोच ही नहीं किया उसके बियॉन्ड निकालने का, अदरवाइज इसने कोशिश किया था, आप वीक पे स्विच करिए इसको 325 को, इसने निकाला ही नहीं, जबकि इसके पास बेस्ट मौका था। हाँ, ये तो बेस्ट हो गया, ये बेस्ट है। बेस्ट था, हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ से सॉर्ट किया है इसको हाँ, क्योंकि टॉप वो से। वही है, ये दोनों क्लब करेंगे ना, उसका अल्टीमेटली कैंडल स्टिक फॉर्मेशन ऐसा ही होना चाहिए, यस क्योंकि वो शॉर्ट्स इंटेंशनली शॉर्ट्स बिल्ड, इंटेंशनली लॉन्ग्स बिल्ड, और कंटिन्यू करना है उसको। सर ये हाँ फ्राइडे ये 4800 हो रहा है, ये 325, तो इसमें उधर ही गए थे, बार बार उसको टच किया, फिर ओके, क्लोजिंग नीचे ही दी है नीचे लास्ट ही मिनट दे में। रहा है, हाँ। लास्ट मिनट ऐसा नहीं, मतलब लास्ट 4 घंटा या जो सेम भी है। निफ्टी में वो 24,000 को क्या कर रहा है उसको ही पता, 24,000 के ऊपर छोड़ ही नहीं यस, रहा है, नहीं तो अपना 1600 का क्लोजिंग भी हो जाता लास्ट इसीलिए वीक में। मैंने टॉप पे जब ये था ना, मैंने नील सर को भी मैसेज डाला था, है ना सर, हाँ, मुझे इसका रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा थोड़ा लगा और यहाँ पर। कॉन्फर्मेशन के लिए थोड़ा मैं हाँ, लास्ट कोई बात लेट नहीं, नाइट में डाले 6-4 नहीं नहीं, में। कोई बात नहीं, मैंने टॉप पे ही डाल दिया था, वो कोई मैटर नहीं है, बट हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो राइट होना चाहिए बस। ये अंदर ही है, लेकिन 325 अंदर ही है, दिख रहा है हाँ मुझे, हाँ, तो और अपने अगर को। जैसे ही ये किसी भी टॉप से 325 क्लोज कर गया, हम्म, फिर हमें सोचना ही नहीं है, 3800 हम लैंड करेंगे ही करेंगे। हाँ, 1.22 तो ये भी जाएगा ही, वो चार्ट में दिखाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अभी बिटकॉइन दिखा तो सही, दिखा तो देखूंगा, अदरवाइज बिटकॉइन ने सर अभी 2500 ब्रेक किया है, अभी तक नहीं किया था, तो यहाँ पर ना नीचे अभी से एक किया डाउट है आ क्या? गया मुझे, नीचे से ऊपर से अभी तक, नहीं नहीं, अभी तक क्या कर रहा था ये, ये 10,000 में ही टेन है क्या अभी थाउजेंड के, भी? हाँ अभी भी 10,000 में है, हाँ, तो टेंशन नहीं है। बट ये स्लगिश जा रहा है 10,000, बट अभी तक क्या कर रहा था ये, 2500 को ना ब्रेक नहीं करा था,
अभी आज इसने डाउन साइड 2500 को ब्रेक कर दिया, इट मींस इट कैन गो टिल अब 10,000 अगेन, बट क्लोजिंग मैटर करती है। अरे यार ये मैथ्स 10,000 का ही है क्या? नहीं, ये अभी 70,500 पे रुकेगा, मेरा जो वो है व्यू। ठीक है, ये अभी तक 10,500 में ही है, इसको हम्म रहने दो इसमें ही। इसके नीचे क्लोजिंग देना आई डोंट थिंक इट इज लॉजिकल फॉर नहीं नहीं, बिटकॉइन। अभी ये 70,800 चल रहा है ना, हम्म अभी ये 70,500 से बाउंस लेगा 76 के लिए, हम्म उसका सिग्निफिकेंस भी है मेरे पास। अगर आप इसको 1 आवर में स्विच कर देंगे हम्म तब आपको मिल जाएगा। यस, आपने किया 2500 का एक बॉक्स बनाइए आप। यस, एक छोटी रेंज और है, एक मिनट में बताती हूँ। इसको तो उड़ाएगा। यस, एक छोटी रेंज और है इसकी, एक है 1317 पॉइंट की रेंज है, बहुत मतलब इंट्राडे वाले प्ले करने के लिए। वहां पर 1 मिनट और पे कोई तो 1 मिनट। जी, हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, अभी देखिए इसने ना ब्रेक कर दिया है इसको 1 आवर पे, हाँ। 24 को। हम्म ठीक है, तो इसकी एक छोटी रेंज और है 1317 पॉइंट की, वन हम्म थ्री वन सेवन पॉइंट की, हम्म वो इंट्राडे प्ले करने के लिए है। हम्म तो यहाँ पर अभी एक छोटा सा बॉटम दिख रहा है आपको, जहां से इसने बाउंस लिया। नहीं 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 नहीं, अभी ये हम्म छोटा वाला, हाँ यस, हम्म हम्म इंट्राडे वाला। हम्म हाँ यस, अभी यहाँ से इसको 2500 डाउन रखेंगे तो वो आएगा 70,500 पे आपके। हम्म अभी अगर 70,500 से बाउंस आएगा हम्म और 13-17 पॉइंट अपसाइड जाएगा हम्म तो ये 76,000 को अप्रोच करेगा, ऐसा। ओके, वापस ऊपर जाएगा 76,000 तक। या जाएगा जाएगा जाएगा, वो डेफिनेटली जाएगा। उसका रीजन ये है, इसने अपसाइड 10,000 ब्रेक किया है, देखिए आप 10,500 का जो लिखा हुआ है ना वहां पर ये अभी वाला, प्रीवियस हाँ। वाला। हम्म यस, इसको ब्रेक किया है, तो अभी ये, यस करेक्ट, ये करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट प्लॉटिंग है ये। हम्म जा सकता है, ये यस, चलेगा ऐसे अपने करके को, ये जाएगा। शिफ्टेड अप ही है। हाँ जाएगा, दिस इज गुड। यस जाएगा ये। हम्म हाँ, तो ठीक अभी है। ये 70,500 पे हॉल्ट लेगा। ओके, हम्म ठीक है। डन, मेरे साइड से तो डन हो गया। अभी और किसी को कुछ क्वेश्चंस विश्चंस है, ग्रुप पे पूछ लेना। मेरे पास अभी टाइम नहीं है ऑनलाइन वाला, बट ठीक है। I think this is enough to understand what is happening to the market and how we are going to plan our next positions. अभी जो किया है उसको डायरेक्ट एक 2 हफ्ते के बाद देखना, 3 हफ्ते के बाद देखना, वैसे रोज मत देखो। रोज देखोगे तो ये नंबर्स तुम्हें सोने नहीं देंगे रात को, तो देखना मत। ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू। एंड कैसे करते हैं इसको? थैंक्स, बाय।